दिखाई दे रहा है ना? सर हट गया। अभी आया? सर आप हटा दिए। अभी दिख रहा है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। शुरू से देखने। सर आप हम लोग को लिंक भेज दीजिए। सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा? यस सर, साउंड नहीं आ रहा है। Over 6 months' time, the buds grow and ripen into red cherries that contain the coffee bean. Pickers harvest the red cherries, leaving the green ones to ripen. They'll return to pick the cherries from the same plant 5 times in 3 months as they ripen. Pickers do their best to have no more than 2 green for every 100 red cherries they harvest. They empty their bins into bags and load them into trucks. Each bin produces about 2 kilos of coffee beans, enough to make about 200 cups of coffee. The fresher the berry, the better the flavor. Cherries picked in the morning are at the wet mill, ready for processing that afternoon. At the wet mill, water channels wash the cherries and drop off at a worm screw. It loads them into a pump. From the pulping machine, the beans flow in water to 2 large rotating cylinders. They sift the beans to separate them and make the hard green cherries that pass through the machine. Next, the beans bathe in more water, which draws out a thick, sugary substance known as miel in Spanish. The coffee maker then feels the washed beans to make sure they're no longer sticky. The beans then drop into the drying bin below. Workers now lay out the beans to dry in the traditional way, outdoors on a cement patio. For 4 days, they rake over the beans as they dry in the hot sun. At night, they let the beans rest to extract the most flavor. Once the beans are dry, they go into a milling machine. Inside, large stones grind away the parchment-like hull from the bean. Drying methods vary among coffee makers. They're a closely guarded secret. The beans can also dry mechanically in rotating drums that pump in heated air. Workers closely monitor the process and empty the drums when the beans are dry. A supervisor smells them to check for a vinegar-like odor. That would mean the beans are fermenting, a result of improper drying.
The dry beans have their husks removed, then go onto an oscillating table that separates them by weight into 3 grades, the heaviest being the first grade beans. Workers pour out each grade into burlap bags. Their contents must weigh in at exactly 69 kilos per bag. Finally, they stitch them up and stack them for shipping. Next, we'll see the whole process that turns these green coffee beans into a steaming cup of gourmet coffee. समझ में आया कॉफी बनती कैसे सर वो मिलिंग प्रोसेस थोड़ा सा बताइए ना, क्या किए मिलिंग प्रोसेस जो किए थे। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या हाँ जी देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉफी का जो फल होता है उसको लेते हैं, ठीक है, मिल में ले जाते हैं, ठीक, अलग अलग सेपरेट करते हैं, ठीक है, कच्चे वाले को पके वाले को सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, उसको धोते हैं, धोने के बाद उसके हस्क को अलग करते हैं, ठीक है, हस्क और सीड्स को अलग करते हैं, मतलब उसका जो गुदा होता है, जो अंदर का बीज होता है उसको अलग करते हैं। तो कॉफ़ी बनता किससे है, कॉफ़ी बीन्स से बनता है, ठीक है, और वो कच्चे बीन्स से बनता है, ठीक, कच्चे बीन्स को गुदे से अलग करते हैं, ठीक, फिर वो जो बीन्स होता है उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है, ग्रीन कॉफी बीन्स जो होता है उसको ड्राई करते हैं, सुखाने के बाद उसको रोस्ट करने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, पार्चमेंट होता है एक प्रोसेस, ठीक है, उसको रोस्टिंग के लिए ले जाते हैं। रोस्टिंग मतलब क्या, उसको गर्म करना, भूनना है ना। जो बीन्स होता है, कच्चा कॉफी बीन्स होता है, उसको सुखाने के बाद उसको रोस्ट किया जाता है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर के जितना रोस्ट करेंगे उतना अच्छा स्वाद होता है उसका। और कॉफी बीन्स को रोस्ट करने के बाद फिर उसको ठंडा है। आप बिना फ्लेवर की कॉफी अगर पियोगे तो बोलोगे कितना घटिया कॉफी बना है, ठीक है, तो हर कॉफी में फ्लेवर में आ जाता है ताकि आए, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो इसमें अलग अलग जो वर्ड्स है, जैसे कूलिंग करना, रोस्टिंग करना, ठीक है, हस्क अलग करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देख लेते हैं कि चाय किस तरह से बनता है, ठीक है, चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ टी प्रोसेसिंग। सर साउंड नहीं है। एक हाँ नहीं यहाँ पर इनकी विदरिंग की जाती है। यानी आज हम बात कर रहे हैं चाय की प्रोसेसिंग के बारे में। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, चाय के बागानों से निकलकर इसकी पत्तियां सबसे पहले पहुंचती हैं चाय की प्रोसेसिंग यूनिट्स में। यानी इन्हें उन फैक्ट्रियों तक लाया जाता है जहां पर इन पत्तियों की विदरिंग की जाती है, इन्हें ट्विस्ट किया जाता है, इन्हें सुखाया जाता है और इसके बाद इनकी अलग अलग आकार की पत्तियों को अलग अलग करके
अलग अलग तरह के पैकेट्स और बंडल में पैक किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले स्टेप के बारे में, जहां बागान से तुड़ाई के बाद जब चाय की पत्तियों को लाया जाता है तो इस तरह की मशीनों में बिछा दिया जाता है। यहाँ पर इनकी विदरिंग का मतलब होता है कि चाय की पत्तियों में जो पानी मौजूद होता है उसे कम किया जाता है। ऐसा करने से इसकी खुशबू और स्वाद बरकरार रहता है। इन मशीनों में नीचे की तरफ एक ब्लोअर लगा होता है। इन ब्लोअर से गर्म हवा निकलती है, जहां इसके ऊपर एक सर बहुत अटक रहा है। इसमें से हवा गुजरकर पत्तियों के बीच में पहुंचती है। इस और इसकी खुशबू और उसके सेकंड डे हम रोलिंग के लिए इसको देते हैं। तो दो दिन के बाद इस बड़ी सी मशीन में ले जाया जाता है, जहां इसकी पत्तियों को ट्विस्ट किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ये पत्तियां आखिर इस मशीन के अंदर जाती कैसे हैं? तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं ऊपर वाली मंजिल पर। यहाँ पर ये एक गड्ढा बना हुआ है, इसे पत्तियों को डाला जाता है तो ये पत्तियां इस गड्ढे से होते हुए इस पाइप से गुजरकर मशीन के अंदर पहुंच जहां पर इसकी पत्तियों को ट्विस्ट कर दिया जाता है। रोलिंग का ये मतलब है कि जब भी हम लीफ को रोल करेंगे तो उस जो फाइनली है वो ट्विस्ट हो, और जो जैसे हम प्रेशर देंगे तो प्रेशर से और फिर जब इसमें पत्तियों की 1 से 1.5 इंच मोटी लीफ को बिछा दी है। रोलिंग होने के बाद हम इसको फर्मेंटेशन में ले आते हैं और 1 इंच मोटा करके इसको यहाँ पे बेड के डालें। यहाँ पे 82 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अब बात करते हैं इसके चौथे स्टेप के बारे में। इस चरण में पत्तियों को सूखने के लिए ड्रायर में डाला जाता है। आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि कैसे यहाँ पर पत्तियां सुखाई जा रही हैं। फर्मेंटेशन होने के बाद हम इसको ड्रायर में देते हैं। ड्रायर में हमको 110 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। उसको चाय को लाके हम यहाँ पे कॉपर में डाल देते हैं अंदर, और आफ्टर 20 मिनट्स का प्रोसेस है ये। आफ्टर 20 मिनट्स ये आफ्टर ड्रायर के बाद फुली ड्राई टी हो जाती है तैयार। अब हम इसके 5वें स्टेप के बारे में बात करते हैं। जब ये पत्तियां सूख जाती हैं तो मशीनों द्वारा इन्हें इनके साइज के हिसाब से कुछ इस तरह से अलग अलग किया जाता है। इसमें जो पत्तियां सबसे ज्यादा मोटी होती हैं वो इस फिल्टर मशीन में सबसे ऊपर ही रह जाती हैं। इसके नीचे इन जालियों से मोटी पत्तियां, उससे छोटी पत्तियां और बहुत महीन सा पाउडर अलग अलग कर लिया जाता है। अब ये पत्तियां एक सार और कुछ दानों की तरह दिख रही हैं। ड्रायर के बाद चाय यहाँ पे शॉर्टिंग में आ जाती है तैयार होके। उसके बाद थोड़ा ठंडा करने के बाद उसको हम शॉर्टिंग करते हैं उसकी, और उसका एक साइज निकालते हैं जाके वो देखने में थोड़ी अच्छी लगे, एक साइज बने। तो मशीनों के द्वारा हम उसको साइज वाइज निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आखिरी स्टेप के बारे में। यहाँ पर इन पत्तियों को यानी बंडलों में पैक किया जा रहा है, और जब ये पैक हो जाती हैं तो इनको अलग अलग बाजार में भेज दिया जाता है। यहीं से होते हुए ये पत्तियां आपके घरों तक पहुंचती हैं और फिर पहुंचती हैं आपके प्यालों तक। और मुझे लगता है कि अब आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो इसीलिए आप चाय पीजिए और इसका भरपूर आनंद भी उठाइए। चलो नहीं कर रहा मन। समझ आया चाय कैसे बनता है? यस सर। बनाते हैं इनकम टैक्स में। तो चाय का प्रोसेस क्या है? चाय बनाने का बागानों से आता है,
ठीक है। चाय की जो ऊपर की पत्तियां होती है उसको तोड़ करके अलग किया जाता है, अलग करके उसको सुखाते हैं, ठीक है। उसकी जो ह्यूमिडिटी रहती है, उसको जो मॉइस्चर रहता है, सॉरी, उसको कम किया जाता है। मॉइस्चर कम करने के बाद उसको फर्मेंटेशन के लिए ले जाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए ले जाते हैं, फिर ड्रायर में सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसकी ग्रेडिंग की जाती है, बड़ी पत्तियों को अलग, छोटी पत्तियों को अलग, बुरादों को अलग, है ना। इस तरह से अलग अलग ग्रेड की चाय पत्ती पैक कर। तो हम लोग ये देखे कि देखो यहाँ पर क्या था, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज है जनरली क्या होता है, जो ग्रो करता है वो मैन्युफैक्चर भी कर, ठीक है। टी, रबर, कॉफी, इन सारी चीज़ों को जो मैन्युफैक्चर करता है वही जनरली क्या करता है, ग्रो भी करता है, ठीक। तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस इमेजिन कीजिए किस तरह से बनेगा। जो टी, रबर, कॉफी का मैन्युफैक्चरर है और साथ में प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, तो वो जब प्रॉफिट एंड, तो वो किस तरह से बनाएगा। टी, रबर, कॉफी, ये दिखाई दे रहा है सभी को। मान लीजिए आप टी, रबर या कॉफी के ग्रो मैन्युफैक्चरर भी हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर भी है। आप इनको ग्रो भी करते हैं और साथ साथ में आप इनको पैक करके बाजारों में बेचने लायक तक बनाते हैं। आप दोनों एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल। ये सारी एक्टिविटी। तो इस केस में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, है ना, तब क्या क्या चीजें होंगी। इस साइड क्या होगा आपका, इस साइड आपका होगा पूरा सेल, जितना भी टी, रबर या कॉफी आपने बनाया होगा वो आपकी यहाँ पर सेल आ जाएगी। इस साइड में क्या क्या चीजें लिखेंगे, इस साइड में आप अपने सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, है ना। एक्सपेंसेस किस किस तरह के होंगे, या तो कल्टीवेशन एक्सपेंसेस होंगे या तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे, दो तरह के। एक तो होगा कल्टीवेशन, कल्टीवेशन एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कल्टीवेशन एक्सपेंस का मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। आपने कॉफी को उगाया है ना, उसको बड़ा किया है ना, खाद वगैरह डाला है, ठीक है, मेंटेनेंस किया है। टी के लिए भी सेम चीजें, रबर के लिए भी सेम चीजें, ये सारा आपका कल्टीवेशन आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, जब कॉफी को आप लेकर के आए, कॉफी बीन्स वगैरह को लेकर के आए और सारा प्रोसेस किया आपने, चाय की पत्तियों को तोड़ करके फैक्ट्री में लेकर के आए और जो सारा प्रोसेस किया आपने पैकिंग करने तक, वो सारा खर्चा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक। अब जो निकलेगा ये आपका सेल, ये आपकी सारा एक्सपेंसेस, यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, यहाँ पर निकलेगा आपका प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये आपका निकला क्या, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई, अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम कितना है। आप बता सकते हो क्या कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम आपका कितना होगा, नहीं बता सकते। एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते कि हाँ इतना ही रुपए का मेरा ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में इतना हिस्सा एग्रीकल्चरल का है और इतना हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल का है, बता सकते हो, नहीं बता सकते, ठीक। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्रॉफिट।
इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक। और कंपोजिट प्रॉफिट में इनकम टैक्स क्या बोलता है, टी रबर कॉफी के लिए कंपोजिट प्रॉफिट को दो हिस्से में बांट दो, ठीक है। कौन कौन से दो हिस्से में, एक हिस्सा जिसको आप एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे और दूसरा हिस्सा जिसको आप नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानोगे, ठीक है। तो सर म्यूट हो गए। मैं कितने देर से म्यूट हूँ, सर अभी बस 5 मिनट से। अभी बस 5 मिनट हुए, उससे पहले सुनाई दे रहा था ना। यस सर। हाँ जी, तो देखो मैं क्या बताया, पता नहीं मैं कब से म्यूट हूँ। कंपोजिट प्रॉफिट कैसे निकलता है, कंपोजिट प्रॉफिट हुआ है, आप टी रबर कॉफी या आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हो और आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हो, आप कॉफी वगैरह उगा भी रहे हो, उगा करके कॉफी बना करके बेच भी रहे हो, आप चाय के बागान लगा कर रखें और चाय पत्ती बनाकर बेच भी रहे हैं, ये दोनों एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें से आधी एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चरल है, और आधी एक्टिविटी क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो जो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, यहाँ पर एग्रीकल्चरल चीजें भी आएंगी और मैन्युफैक्चरिंग की चीजें भी आएंगी, यहाँ पर आपका एग्रीकल्चरल इनकम आएगा और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी आएगा। तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल दोनों मिक्स होगा, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इतना आपका एग्रीकल्चरल है और इतना आपका नॉन एग्रीकल्चरल है। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है ये जो प्रॉफिट आया ना, इस प्रॉफिट को आप क्या कीजिए, दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल, जो कि आपकी पीजीबीपी इनकम में जाएगा, ठीक। अब इसका इनकम टैक्स ने क्या किया, परसेंटेज बना दिया, ठीक है, दे दिया, ठीक है। सर अच्छे से शो नहीं कर रहा, ब्लर आ रहा है। हाँ वो नेटवर्क इशू है, नेटवर्क आ जाता है, ठीक। तो इनकम टैक्स ने क्या कहा कि टी रबर और कॉफी का परसेंटेज फिक्स कर दिया, ठीक। कितना कितना परसेंट, अगर आप टी रबर कॉफी का मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोइंग दोनों करते हैं तो टी के लिए एग्रीकल्चरल इनकम आप मान लीजिए 60%, कितना मान लीजिए 60% आप ये मान लीजिए कि वो एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है, स्ट्रेट। दूसरा आप रबर के लिए क्या मान लीजिए कि रबर 65% एग्रीकल्चरल इनकम, रबर के लिए 65% एग्रीकल्चरल इनकम। कॉफी के लिए क्या, कॉफी के लिए 2% है, एक है 60%, दूसरा है 75%। 75 वाला है। हाँ जी, अब जैसे 60% है तो बाकी बचा कितना परसेंट, 40% आपका हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। रबर के केस में 35%, ठीक है, और यहाँ 40 और 25, 40% या 25%, अगर
60% ले रहा हूँ तो 40 और 75 ले रहा हूँ तो 25। अब यहाँ पर कॉफी में 2 परसेंटेज है, क्या क्या, एक तो 60% और दूसरा 75%। यदि आप क्यूरिंग, ठीक है, ग्रोइंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग और जो फ्रेग्रेंस मिलाते हैं, क्या बोलते हैं इसका, मैं एक word बताता हूँ, नाम नहीं है। सर और एसेंस। हाँ, एसेंस को मिलाते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, है ना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा भी बहुत ज़्यादा है। तो आप एग्रीकल्चरल इनकम कितना मानोगे, 60%। लेकिन यदि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मतलब सॉरी ग्रोइंग और क्यूरिंग बस करते हैं, आप कॉफ़ी को उगाते हैं और उगाकर कॉफ़ी बीन्स को सुखाते हैं, यहाँ तक का अगर काम आप करते हैं, ज़्यादातर एक्टिविटी आपकी कैसी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो उस केस में 75%। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वाला ज़्यादा हिस्सा ले लेते हो, है ना, या ज़्यादा हिस्सा परफॉर्म करते हो, ग्राउंडिंग करते हो, रोस्टिंग करते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करते हो, तो आपका एग्रीकल्चरल इनकम कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। आई बात समझ में। तो टी, रबर, कॉफी के लिए क्या क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम 60%, 65%, 60 या 75%, बाकी जो हिस्सा बचा 40, 35, 40 या 25, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। ठीक, अब सिर्फ यही है क्या, इसके अलावा भी तो कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं और साथ में उनका मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा होगा, एग्जाम्पल बता दो। आम हो सकता है, आप आम के बागान में आम उगाते भी हैं और साथ में उसका जूस वगैरह भी बना करके बेचते हैं। आप टमाटर उगाते हैं, टोमेटो सॉस वगैरह बनाकर बेचते हैं। आप अलग अलग तरह के अमरूद। फल उगाते हैं और उन फलों का आप क्या बनाते हैं, जैम बना करके बेचते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर करके अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर होगा तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीजें दी हैं, टी, रबर और कॉफी के लिए, बाकी प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं बताया। तो बाकी प्रोडक्ट के लिए भी इनकम टैक्स एक्ट बताता है, ठीक है। तो वो हम खुद से देख लेते हैं, सिंपल सा है। मैं आपको शेयर करता हूँ पीडीएफ। कहाँ गया अभी पीडीएफ, एग्रीकल्चरल, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, शेयर किया हूँ पीडीएफ। यस सर। हाँ जी, देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स देयर इज अ कंपोजिट इनकम विच इज पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हम ऐसे परफॉर्म करते हैं जो कंपोजिट होते हैं, आधा हिस्सा हम एग्रीकल्चरल रहता है और बाकी हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम भी करते हैं। तो फॉर डिटरमाइनिंग द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम चार्जेबल टू टैक्स, मतलब प्रॉफिट में से वो हिस्सा जो नॉन एग्रीकल्चरल होगा और जिस पर टैक्स लगेगा, वो हिस्सा निकालने के लिए क्या किया जाएगा, the market value of any agricultural produce which has been raised by the SEC and which has been utilized as a raw material in such business shall be deducted. No further deduction shall be made in respect of the cost of cultivation incurred by the SEC as a cultivator. बात समझ में आई क्या लिख रहा है? हाँ जी, देखिए
टी रबर कॉफी के केस में क्या था, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल निकालने के लिए इनकम टैक्स ने बता दिया कि 60% टी, 65% रबर और कॉफी का 60 या 75% आप क्या मान लो, एग्रीकल्चरल इनकम मान लो, किसका, नेट प्रॉफिट का, ठीक है। और बाकी हिस्सा क्या मान लो आप, बाकी हिस्सा आप मान लो नॉन एग्रीकल्चरल। लेकिन बाकी जो बिजनेस है ना, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्या बोल रहा है, उनके लिए वो बोल रहा है कि कल्टीवेशन का जो एक्सपेंस होगा, जैसे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका सेल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आपका कल्टीवेशन एक्सपेंस आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आएगा और यहाँ पर आपका आएगा नेट प्रॉफिट। मान लीजिए आपका आम का बागान है, ठीक है, और आपकी मैंगो जूस की एक फैक्ट्री भी है, तो आप क्या करते हैं, आप बाजार से भी आम खरीदते हैं और मैंगो फ्रूटी बनाते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं, और आप अपने खेतों से आम लेकर के आते हैं और उसको भी यूज करते हैं मैंगो जूस बनाने के लिए। तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो दो जगह से आ रहा है, एक तो मार्केट से आ रहा है और एक आपका खुद का आ रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स ये बोलता है कि जो आपका खुद का आ रहा है वो आपके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, क्योंकि उसको आपने उगाया है और आप उसको यूज कर रहे हो खुद के लिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि सर जो मैं खुद कल्टीवेशन एक्सपेंस वगैरह लगाऊंगा, जो मैं खुद का आम उगाऊंगा उसको उगाने के लिए भी खर्चा लगा होगा, पेड़ पौधे लगाने पड़े होंगे, जमीन का किराया देना पड़ा होगा, रखवाली करने के लिए आदमी को सैलरी देनी पड़ी होगी, खाद वगैरह डालना पड़ा होगा, दवाइयाँ छिड़कनी पड़ी होगी, ठीक, ये सारे काम मेरे को करने पड़े, वेयर हाउस रखना पड़ा होगा, उसका किराया देना पड़ा होगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसका रेंट देना पड़ा होगा। तो ये सारा कल्टीवेशन एक्सपेंसेस किया होगा आपने, और इसको आप माइनस करना चाहते हो अपनी इनकम में से, क्योंकि ये आपका खर्चा है, आप खर्चे को माइनस करना चाहते हो। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपने जितना आम यूज किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग में एज ए रॉ मटेरियल, उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लो और उस मार्केट वैल्यू को यहाँ पर माइनस कर दो। आम को उगाने का खर्चा माइनस मत करो, क्या माइनस करो, आम यदि आप बेच देते हैं मार्केट में तो कितना पैसा मिलता, अगर आप मार्केट में बेच देते तो आपको पैसा मिलता, आपने मार्केट में नहीं बेचा, आपने क्या कर लिया, खुद ही यूज कर लिया ताकि आप सेल कर सको, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आम या जो भी प्रोडक्ट आपके पास था जो आपने यूज कर लिया एज ए रॉ मटेरियल, उसकी मार्केट वैल्यू को आप डिडक्ट कर लीजिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में डाल दीजिए, ये बोल रहा है। आई बात समझ में या नहीं आई, बात समझ में आई, फिर से पढ़ करके देखते हैं। चलिए फिर से पढ़िए, क्या लिखा है, फॉर डिटरमाइनिंग नॉन एग्रीकल्चरल इनकम चार्जेबल टू टैक्स the market value of any agricultural produce which has been raised by the SSE and which has been utilized as a raw material in such business shall be deducted। क्या डिडक्ट करने के लिए बोल रहा है आपको, कल्टीवेशन का एक्सपेंस डिडक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू को ही माइनस कर लो, और मार्केट वैल्यू अगर आपने माइनस कर लिया तो किसी भी तरह का कल्टीवेशन एक्सपेंस आपको डिडक्ट करने के लिए नहीं देगा। आगे बोलता है कि नो फर्दर डिडक्शन शैल बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द कल्टीवेशन इनकर्ड बाय द एसएससी एज ए कल्टीवेटर, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में, वेयर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ऑर्डिनरीली सोल्ड इन द मार्केट, यदि वो आम जो आपने यूज किया एज ए रॉ मटेरियल, यदि उसको आप सामान्य रूप से मार्केट में बेच देते तो जो आपको वैल्यू रिसीव होती वो वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू होगी। The value calculated according to the average price at which it has been sold during the relevant previous year, ठीक। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है,
where the agricultural produce is not ordinarily sold in the market, the aggregate of the following shall be the market value. यदि आपका जो प्रोडक्ट है आपने यूज किया है मैन्युफैक्चरिंग में, आपने उगाया और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर लिया, यदि वो मार्केट में बिकने वाला आइटम है तो मार्केट में जितने रुपए में बिक सकता है उतना रुपए आप मार्केट वैल्यू मान लो। लेकिन यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में बिकता ही नहीं है, इस तरह का प्रोडक्ट है जो मार्केट में बिकता ही नहीं है, तो उस तरह के प्रोडक्ट का आप प्राइस कैसे निकालेंगे? जब मार्केट में ही नहीं बिक रहा है तो मार्केट में बिक नहीं रहा है तो उसकी प्राइस भी नहीं होगी, उसका प्राइस आप कैसे निकालेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन, the land revenue or rent paid for the land on which it was grown and the profit which in the opinion of assessing officer is reasonable। ठीक है, इन तीनों में से आप मार्केट वैल्यू बना लो। ठीक है, इन तीनों को आप जोड़ लो तो ये आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। क्या क्या चीजों को जोड़ना है भाई? एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन को, लैंड रेवेन्यू को, रेंट जो आपने पे किया उसे, ठीक है, या असेसिंग ऑफिसर जितना भी रिजनेबल प्रॉफिट बोल रहा है उसको। ठीक है, इन चीजों को जोड़ करके आप क्या बना लेंगे? मार्केट वैल्यू बना लेंगे और वही मार्केट वैल्यू आप डिडक्ट करेंगे एज एन एक्सपेंस, उसके अलावा कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया शुगर केन, टी, रबर, कॉफी, इन सब के बारे में बताया है जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। आज जो पढ़ाया मैंने समझ में आया या नहीं आया? बोलो भाई। यस सर। आया पक्का? कुछ डाउट है? किसी को भी कुछ डाउट है? हमने आज क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो किसान होता है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्रो ही करता है, वो ग्रो करने के साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकता है। और यदि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है कल्टीवेशन के साथ साथ, तो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम निकालना और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से इनकम टैक्स ने क्या किया? टी, रबर, कॉफी के लिए अलग नियम बना दिए और उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसको आप ग्रो करते हो, साथ में उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करते हो, कुछ प्रोडक्ट बनाते हो उनसे, उसके लिए अलग नियम बना दिया। तो टी, रबर, कॉफी के लिए क्या नियम बनाया? नेट प्रॉफिट आप निकाल लो, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद टी का 60% एग्रीकल्चरल मान लो और 40% नॉन एग्रीकल्चरल मान लो। रबर के लिए 65% एग्रीकल्चरल मान लो, 35% नॉन एग्रीकल्चरल मान लो। कॉफी के लिए 60% एग्रीकल्चरल, 40% नॉन एग्रीकल्चरल यदि क्यूरिंग और भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जैसे क्यूरिंग था और क्या कहता है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं, एसेंस मिक्स करना, रोस्टिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटीज यदि है तो एग्रीकल्चरल इनकम कम हो जाता है और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और क्यूरिंग रहता है तो 75% एग्रीकल्चरल इनकम का जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने ये देखा कि टी, रबर, कॉफी के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो और साथ साथ में उसका मैन्युफैक्चरिंग से कुछ प्रोडक्ट बना करके कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके आप बेच भी सकते हो। तो उन केसेस में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल कैसे निकालोगे? तो नॉन एग्रीकल्चरल निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, यहाँ पर कल्टीवेशन एक्सपेंस मत डालिए, यहाँ पर कल्टीवेशन एक्सपेंस मत डालिए, आप सेल देखिए अपना, आपका मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री का खर्चा है वो सारे खर्चे डालिए और साथ में आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया है, जो कि आपने खुद ग्रो किया है, आपकी ग्रोइंग वाले जो रॉ मटेरियल है उसको आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया है, तो उसकी मार्केट वैल्यू निकाल लो और उस मार्केट वैल्यू को यहाँ पर लिख लो। मार्केट वैल्यू यहाँ पर माइनस करने के लिए अलाउ करते हैं। फिर आप जो नेट प्रॉफिट निकालोगे ये कैसा नेट प्रॉफिट होगा? ये नॉन एग्रीकल्चरल वाला नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? इतना ही हमने पढ़ा। किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया सब? आया या नहीं आया? आया ना तो बोलो।